ઓમ શાંતિ. આજે તારીખ 6 જુલાઈ 2021. બાબાના મધુર મીઠા મહાવાક્યો. મુરલીનો સાર છે, मीठे बच्चे, इस महाभारत लड़ाई में पुराना जाड़ समाप्त होना है, इसीलिए लड़ाई के पहले बाप से पूरा वर्षा ले लो। બાબા કહે છે હવે મહાભારતનું યુદ્ધ શરૂ થવા જઈ રહ્યું છે અને આ મહાભારત યુદ્ધની અંદર આ જે મનુષ્ય સૃષ્ટિ રૂપી કલ્પવૃક્ષ છે, મનુષ્ય સૃષ્ટિ છે જે સમાપ્ત થવાની છે, તો બાબા કહે છે એના પહેલાં બાબા પાસેથી પૂરેપૂરો વારસો મેળવી લો। प्रश्न, बाबा को माताओं का संगठन चाहिए, लेकिन उस संगठन की विशेषता क्या हो? शिव बाबा ने माताओं संगठन જોઈએ છે, પરંતુ એ માતાઓનું સંગઠન કેવું હોવું જોઈએ? માતાઓના સંગઠનની વિશેષતા કઈ હશે? તો એ માતાઓનું સંગઠન બાબા સેવાના કાર્યમાં લગાવશે। उत्तर, ऐसा संगठन हो जो देही अभिमानी रहने का पूरा पुरुषार्थ करे। माताओं केवुं संगठन જોઈએ કે જે હરેક માતાઓ દેહી અભિમાની આત્મ અભિમાની રહેવાનો પૂરેપૂરો પુરુષાર્થ કરતા હોય। जिन्हें पक्का नशा हो कि हमें पावन दुनिया बनानी है, पतित नहीं बनना है। नष्टो मोहा ग्रुप हो तब कोई कमाल करके दिखाए। माताओं केवुं ग्रुप જોઈએ? एक तो आत्माभिमानी, बीजू एक बी एक ग्रुप में पतित ना જોઈએ, त्रीजू बाबाए कह્યું नष्टो मोहा होवा જોઈએ, किसी में भी रग नहीं होनी चाहिए। मोह की रग बहुत नुकसान कर देती है। तो बाबा ने माताओं संगठन જોઈએ છે, પરંતુ એ સંગઠન બી કેવું કે હરેક માતાઓ નષ્ટ મોહા હોવી જોઈએ। એ માતાઓની કોઈની અંદર મોહની રગ ના હોવી જોઈએ, એક બી માતા પતિત ન હોવી જોઈએ અને હરેકને નશો હોવો જોઈએ કે આપણે પાવન દુનિયા બનાવવાની છે અને હરેક માતા એ આત્માભિમાની સ્થિતિમાં રહેવાનો પુરુષાર્થ કરતી હોવી જોઈએ। તો બાબાને આવું સંગઠન જોઈએ છે। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यह जानते हैं कि मीठा बाबा हमको स्वर्गवासी बनाने यहाँ आए हैं। हरेक ने खबर છે કે બાબा આવે છે આપણને स्वर्गवासी बनावा। यह बच्चों की बुद्धि में है। हरेक को यह समझाना है कि हम आत्मा इस याद की यात्रा से पवित्र बनती है। तो हरेक ने बाबा समझावी રહ્યા છે અને હરેક આત્મા સમજે છે કે જેટલું આપણે બાબાને યાદ કરીશું, બાબાની યાદમાં રહીશું, એટલા પવિત્ર બનીશું। कितना सहज उपाय है, सिर्फ बाप को याद करना है। पवित्र बनवानो, पावन बनवानो सहज उपाय છે। एक बाबा ने याद करो। बच्चे जानते हैं कि बाप एक सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। अब सब जीवन बंध में है, रावण राज्य के बंधन में है। बाबा हरेक ने मुक्ति जीवन मुक्ति नो वारसो आपवा आवे छे અને અત્યારે હરેક આત્માઓ જીવન બંધમાં છે, બાબા જીવન મુક્તિ આપે છે। यह बात बाप जानते हैं और बच्चे जानते हैं और न जाने कोई। આ હરેક વાત તો બાબા જાણે છે અને બાબાએ આવીને બાળકોને સમજાવી તો બાળકો બી જાણે છે, બીજું કોઈ આ વાતોને સમજી શકતું નથી। तुम बच्चों को निश्चय है कि बेहद के बाप को हम याद करते हैं, तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। आत्मा को, जिस बाप को आधा कल्प याद किया करते थे,
वह बाप मिला है। कई खुशी होवी જોઈએ કે જે પરમાત્માને આપણે દ્વાપર કળયુગથી 2500 વર્ષોથી યાદ કરતા આવ્યા છે, હવે એ પરમાત્મા આવીને મળ્યા છે તો ખુશી થવી જોઈએ। दुख में बाप को सिमरण करते रहते, तुम भी सिमरण करते थे, अभी तुम दुखी होकर सिमरण नहीं करते हो। हाँ, बाबा કહે છે પહેલા તો દુઃખમાં સિમરણ કરતા હતા, પરંતુ હવે ભગવાને આવીને સત્ય સમજ આપી કે ભગવાનને કેવી રીતે યાદ કરવા જોઈએ। તો હવે આપણે કોઈ દુઃખમાં યાદ નથી કરતા। जिसको सारी दुनिया सिमरण करती है वह बाप आया है, तुम जानते हो। बाबा ने बार बार समझाया है, यहाँ जब तुम बैठते हो तो ऐसे समझो कि हम आत्मा है। બાબાને શું સમજ આપી કે અહીંયા જ્યારે બેસો ત્યારે એવી રીતે બેસો કે આપણે કોણ છીએ? આત્મા છીએ। એ સ્મૃતિમાં જ્ઞાન લો, એ સ્મૃતિમાં બેસો। बाबा परम धाम से आया हुआ है, कल्प कल्प अपने वायदे अनुसार आता है। बाबा की यह प्रतिज्ञा है कि तुम जब पुकारेंगे और आधा कल्प जब पूरा होता है तब मुझे आना पड़ता है। बाबाए कई प्रतिज्ञा करी थी कि જ્યારે તમે મને પુકારશો, મને બોલાવશો અને આ કલ્પ પૂરું થશે ત્યારે હું આવું છું, અને એ બી પુકારતા પુકારતા 2500 વર્ષ થશે ત્યારે બાબા આપણી પુકાર સાંભળીને આવે છે। कलयुग के बाद सतयुग होना है तो मुझे आना पड़ता है। यह सिर्फ तुम बच्चों को मालूम है कि यह संगम युग है। बाबा आया हुआ है। હવે ખબર પડી કે વર્તમાન સમય કયો સમય છે, તો પરમાત્મા આવીને સમજ આપી કે અત્યારે સંગમ યુગનો સમય છે કે જ્યારે બાબા આવ્યા છે। तुम बच्चे भी सर्विस करते हो, दिन प्रतिदिन परिचय देते जाते हो, बाप की पहचान सबको मिलती जाती है। दिन प्रतिदिन આપણને બાબાની ઓળખ થતી જાય છે, કારણ કે બાબા નવી નવી વાતો પોતાની જણાવે છે। બાબાનો પરિચય દિવસે ને દિવસે કંઈક અલગ મળતો જ જતો હોય છે, તો બાબાને આપણે જાણીએ છીએ, એમની ઓળખ થતી જાય છે। यहाँ बैठे हो, जानते हो बेहद का बाबा शिव बाबा हमको फिर से बेहद का वर्षा देने आए। કોણ આવ્યું છે? બેહદના પિતા શિવ બાબા આપણને બેહદનો વારસો આપવા માટે આવ્યા છે। तुम बाबा बाबा कहते हो, हम शिव बाबा के पास आए हैं। शिव बाबा भी कहते हैं कि मैं साधारण तन में आया हूँ, कल्प पहले मुआफिक। આપણે બાબા બાબા કરીએ છીએ કારણ કે આપણને ખબર છે કે આપણે કોની પાસે આવ્યા છીએ। આપણને ખબર છે કે આપણે શિવ બાબા પાસેથી વારસો મેળવવા આવ્યા છીએ, તો બાબા બાબા કરીએ છીએ। यह भूलना नहीं चाहिए, माया ऐसे बाबा की याद भुला देती है। बाबा કહે છે બાબા બાબા કરતે રહો, બાબા બાબા કરતા રહેવાનું છે, એમની યાદને ભૂલવાનું નથી। માયા ભલે કોશિશ કરે યાદ ભૂલાવાની, પરંતુ આપણી યાદ એવી હોવી જોઈએ कि माया ने भी भगाड़ी सके। बाबा की याद से पतित से पावन बनना होता है। तुम जानते हो कि सर्व का सद्गति दाता एक ही सतगुरु है। सर्व आत्माओना सद्गति दाता एक सतगुरु परमपिता परमात्मा छे। सिख लोग भी गाते हैं सत श्री अकाल। हाँ, अकाल मूरत अजोनी सिख लोग शू कहे छे? एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजोनी। तो पतित पावन को ही सतगुरु कहा जाता है। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन। भगवान ने शू कहीने बुलावीए छे? हे पतित पावन। तो आत्मा पुकारती है, अभी तुम जानते हो
हम यहाँ आए हैं सन्मुख बाप से मिलने। क्यों आए हैं बाबा के घर में? सन्मुख में बाबा से मिलने। बड़े बड़े आदमी एक दो के पास मिलने जाते हैं, उन्हों की कितनी महिमा होती है। धूमधाम से आजियान के लिए तो बैंड बाजे आदि बजाते हैं खुशी के लिए। कोई મોટી વ્યક્તિ આવે તો શું કરે? એમનું સ્વાગત કરવા માટે, એમનું સામૈયું કરવા માટે ઢોલ નગારા લઈને જતા હોય છે खुशी तो यह गुप्त वेश में कौन आया हुआ है? तुम नहीं जानते हो। सॉरी, यह गुप्त वेश में कौन आया हुआ है यह तुम ही जानते हो। उनको कहते हैं दूर देश का रहने वाला आया देश मुसाफिर। तो बाबा दूर देश का रहने वाला मुसाफिर परदेश में आया है, मुसाफरी करते करते हमारे पास आया हुआ है। तो एमનું स्वागत केवुं करवुं जोईए? धूमधामथी। तुम जानते हो हम आत्माएं परम धाम की रहने वाली हैं, यहाँ मुसाफिर बन आए हैं पार्ट बजाने। આપણે ક્યાંના રહેવાસી છીએ? પરમધામના, અને સૃષ્ટિ પર આવ્યા છે આપણો પાર્ટ ભજવવા માટે। यहाँ मुसाफिर बन आए हैं पार्ट बजाने। एक एक अक्षर जो बाप समझाते हैं दुनिया में कोई नहीं जानते। बाबा जे वातो समझावी रह्या छे आ वातोने दुनियामां कोई नहीं जानतुं। तुम बाप से सुन रहे हो, वह अच्छी रीति धारण करना चाहिए। बाबा जे ज्ञान आपे छे तो बाबा कहे छे आ ज्ञाननी एक एक पॉइंट्स अनमोल छे, एने सारी रीते धारण करो। बाप समझाते हैं तुम सब मुसाफिर हो इस कर्म क्षेत्र में। बाबा शू समझावे छे? आपणे बधा कोण छीए? मुसाफिर छीए आ सृष्टि रूपी कर्म क्षेत्र ऊपर। हम शांति धाम में रहने वाले हैं, फिर यहाँ टॉकी वर्ल्ड में आते हैं। રહેવાવાળા ક્યાંના છીએ? શાંતિધામ પરમધામના। અહીંયા આવાજની દુનિયામાં આવ્યા છે, મુસાફર બનીને કર્મ ક્ષેત્રમાં કર્મ કરી રહ્યા છે। हम शांति धाम के मुसाफिर हैं, 84 जन्मों का यहाँ पार्ट बजाते हैं। आखिर यह अंत का समय है। मुसाफिर छे, शांतिधामना રહેવાસી છે, આવ્યા છીએ સૃષ્ટિ પર પાઠ ભજવવા માટે। હવે 84 જન્મો તો પાઠ ભજવ્યો, હવે આ અંતનો સમય છે। तो बाप आए हैं पुरानी सृष्टि को नया बनाने। यह भी तुम जानते हो। चित्र भी क्लियर है, चित्र भी क्लियर कट છે, એ બી આપણને ખબર છે કે આપણે અહીંયા પાઠ ભજવવા આવ્યા છે। હવે પાઠ પૂરા થયા, અંતનો સમય છે, વાપિસ બાબાની સાથે જવાનું છે। चित्र भी क्लियर है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना करते हैं। ऐसे तो नहीं कृष्ण द्वारा, विष्णु द्वारा स्थापना करते हैं। शिव बाबा कोना द्वारा स्थापना करे छे? ब्रह्मा द्वारा। विष्णु के श्री कृष्ण द्वारा कोई स्थापना नहीं करता। बाप आते ही है ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग रचना। बाबा केम आव्या छे? प्रजापिता ब्रह्माना तननी अंदर आवीने ब्रह्मा द्वारा स्वर्गीय दुनियानी रचना रचे छे। तो बाप आए हैं साधारण तन में। यह है ही पतित दुनिया, एक भी पावन नहीं। आ दुनिया केवी छे? पतित दुनिया छे के जे आ दुनियानी अंदर एक भी मनुष्य आत्मा एवी नथी के जे पावन होय। जबकि पहले नंबर वाले लक्ष्मी नारायण भी पतित बनते हैं। सतयुग आदि में जे लक्ष्मी नारायण नी आत्मा छे, अत्यारे कलयुग अंत में ए भी पतित बने छे। जो पावन थे वही पतित बने हैं। सारी डिनायस्टी सहित जे सतयुग में लक्ष्मीनारायणनी डिनायस्टी हती, जे पावन हता, जे लक्ष्मीनारायणनो वंश हतो, ए बी धीरे 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 अत्यारे कलयुग अंत में आवीने पतित बन्या छे। तुम जानते हो
हम जो डीटी धर्म वाले थे वह अब शूद्र धर्म वाले बन गए हैं। बल अमेरिका आदि में बड़े बड़े साहूकार रहते हैं, परंतु सतयुग के सामने अमेरिका कुछ भी नहीं। बाबा કહે છે અમેરિકાની અંદર ભલે મોટા મોટા સાહુકાર કરોડપતિ લખપતિ રહેતા હોય, પરંતુ સતયુગી દુનિયાની આગળ અમેરિકા બી કંઈ જ નથી। કારણ કે અમેરિકાની સંપત્તિ અત્યારે ભલે કરોડો રૂપિયા હશે, પરંતુ એ શું છે? વિનાશી સંપત્તિ છે, જે થોડા સમયનું સુખ આપે છે, આજે છે કાલે નથી। પરંતુ સતયુગની અંદર એટલું સુખ હોય છે કે જ્યાં સોના હીરે જવાહરાતના મહેલ હોય છે। तो बाबा कहते हैं सतयुग के सामने अमेरिका कुछ नहीं, यह सब पिछाड़ी में बने हैं। अमेरिका आदि सब पिछाड़ी में बने हैं। यह अल्पकाल का भबका है, विनाश तो होना ही है। तुम बच्चों को बड़ा अच्छा नशा रहना चाहिए। बाबा કહે છે તમે તો સતયુગી દુનિયામાં જવાના છો, તો તમને તો નશો હોવો જોઈએ। तो बाप जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको हम बच्चे याद न करें, कितना वंडरफुल है। बाबा जे आपने स्वर्गीय दुनियाना मालिक बनावी रह्या छे, ए बाबाने अगर આપણે याद न करिए तो बाबा કહે છે કે શું કહેવાય એને? माया याद करने नहीं देती। तुम बच्चे अभी ऐसे कहते हो, बाबा माया हमको याद करने नहीं देती। बाबा કહે છે તમે સામેથી કહો છો કે बाबा हमको माया याद नहीं करने देती। तो बाबा, अरे बाबा तो जो तुमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको तुम याद नहीं कर सकते। माया याद નથી કરવા દેવાની, માયાનું કામ છે। પરંતુ જે બાપ આપણને સ્વર્ગીય દુનિયાનો વારસો આપવા આવ્યા છે, શું આપણે એમને યાદ નથી કરી શકતા? प्रजा भी तो स्वर्ग का मालिक बनती है ना। सब सुखी रहते हैं, अभी तो सब दुखी है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आदि को तो रात दिन चिंता लगी रहती है। लड़ाई आदि में कितने मरते रहते हैं? हाँ, पीएम જે વડાપ્રધાન હોય છે, મુખ્યમંત્રી હોય છે, એ લોકોને ચિંતા રહેતી હોય છે દેશ માટેની, કારણ કે ક્યારે શું થાય નક્કી નથી। લડાઈ આદि में कितने मरते रहते हैं, तुम जानते हो। महाभारत लड़ाई भी मशहूर है। बाबा કહે છે તમને ખબર છે કે મહાભારતનું યુદ્ધ કેવું હતું, परंतु उसमें क्या हुआ था यह किसकी बुद्धि में नहीं, तुमको बाप ने बुद्धि में बिठाया है। महाभारत की लड़ाई में सब मर गए। कितनी बड़ी मनुष्य सृष्टि है। महाभारत में बताव्યું છે કે સર્વવંશનો વિનાશ થયો, સર્વવંશ વિનાશ થયો, માના સંપૂર્ણ વંશ સમાપ્ત થઈ ગયો એમ બતાવવામાં આવે છે। તો બાબા કહે છે કે મહાભારતમાં કેટલો બધા મરી ગયા હતા। आत्माओं का भी जाड़ है। जाड़ पहले नया होता है तो बहुत छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता है। तो बाबा कहते तुम जानते हो, पहले जब डीटी धर्म था तो कितना छोटा झाड़ था। ना मनुष्य सृष्टि रूपे कल्पवृक्षनी વાત છે કે જ્યારે સતયુગમાં દેવી દેવતા ધર્મ હતો ત્યારે ઝાડ કેટલું નાનું હતું, માના કેટલી જનસંખ્યા ઓછી હતી। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब तो कितने वैरायटी धर्म है। इस महाभारत लड़ाई द्वारा इन सब का विनाश होना है। અત્યારે અનેક ધર્મ છે, પરંતુ આ લડાઈ દ્વારા अनेक धर्मों विनाश थसे, परंतु यह ज्ञान कोई में है नहीं। बल कहेंगे यह वही लड़ाई है, परंतु इससे क्या होने का है यह पता नहीं।
ભલે એમ કહીએ કે એ જ મહાભારતનું યુદ્ધ જે આપણી શાસ્ત્રોમાં લખેલું છે એવું જ મહાભારતનું યુદ્ધ થવાનું છે, પરંતુ શું થશે એ કોઈને ખબર નથી। तुम अभी रोशनी में हो, जानते हो विनाश तो होना है, इसीलिए महाभारत लड़ाई के पहले अपना वर्षा तो ले लेवे। બાબા કહે છે ખબર તો છે મહાભારતનું યુદ્ધ થવાનું છે, વિનાશ સામે ઊભો છે, તો બાબાએ કહ્યું કે તો વિનાશ થાય એ પહેલાં તો વારસો તો લે લો। बात तो बड़ी सहज है, पवित्र बनो और बाप को याद करो। वारसो मेळवવાનો रस्तो कयो छे? पवित्र बनो, योगी बनो। बहुत बच्चियों के ऊपर अत्याचार होते हैं, तुम माताओं का संगठन होना चाहिए एक दो को बचाने के लिए। तो बाबा કહે છે પવિત્રતા ઉપર જે અત્યાચાર થાય છે એના માટે માતાઓએ જ પોતે જાતે એવું સંગઠન તૈયાર કરો કે જે બાબાના જે બાળકો છે કે જેની ઉપર અત્યાચાર થાય છે એમને તમે બચાવી શકો। પરંતુ દેહી અભિમાની જરૂર बनना पड़े, हमको पावन तो जरूर बनना है, यह पक्का नशा चाहिए। અને માતાઓનું સંગઠન બી કેવું જોઈએ કે જે આત્માભિમાની સ્થિતિવાળું હોય, જે પોતે પાવન હોય તો જે આત્મા ઉપર અત્યાચાર થાય છે એમને બચાવી શકે। ऐसे नशे में रहने वाले ही समझा सकते हैं, हमें बाप को याद करना है, पवित्र बनना है। શું કરવાનું છે? બાબાને યાદ કરવાના છે અને પવિત્ર બનવાનું છે। हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं, यह नशा तो रहना चाहिए। स्वदर्शन तो स्वનું દર્શન કરો કે આપણી અંદર કેટલી કમી, કમજોરી, અવગુણ છે અને બાબા આપણને કેટલા સદ્ગુણોને ધારણ કરવાનું કહે છે। તો સ્વનું દર્શન કરતા જાઓ અને અંદરની કમી, કમજોરીઓને નષ્ટ કરતા જાઓ। हम रचयिता बाप और रचना के चक्र को जानते हैं, अभी हमको बाप से नई दुनिया सत्युग का वर्षा लेना है। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं यह समझाते रहो। बाबा કહે છે હરેકને સમજાવો કે 84 જન્મો કેવી રીતે લેતા હોઈએ છે। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ક્યારે પાપ નષ્ટ થશે? જ્યારે બાબાને યાદ કરતા રહેશું ત્યારે પાપ નષ્ટ થશે। पावन तो जरूर बनना है, पावन अर्थात पवित्र। केवा बनवानुं छे? पावन बनवानुं छे, पवित्र। काम महाशत्रु है, हमने 84 जन्म का चक्र पूरा किया, अब बाप से वर्षा लेना है। कયું કાર્ય કરવાનું છે હવે? હરેકને સંદેશ આપતા જાઓ, સ્મૃતિમાં રાખો કે હવે 84 જન્મોનું ચક્ર પૂરું થયું, હવે બાબા પાસેથી વારસો મેળવવાનો છે। તો બાપ કહતે હૈ મુझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, यहाँ तो आते ही हो रिफ्रेश होने। बाबा पासे केम आवीए छे? रिफ्रेश थवा। तो मुझ बाप को याद करो, 21 जन्मों का वर्षा लेना है। कोई में भी मोह की रग नहीं चाहिए। बाबा કહે છે મને યાદ કરો, 21 જન્મનો વારસો મેળવી લો, હવે કોઈની અંદર મોહની રગ નહીં રાખો। नष्ट मोहा बनना है, इस शरीर में भी मोह न रहे। यह तो पुरानी चमड़ी है। शरीर भी શું છે? पुरानी चमड़ी। तो शरीરમાં भी मोह ना होવો જોઈએ, परंतु इसकी संभाल रखनी होती है जो पढ़ाई पढ़ सके। कहीं शरीરની સંભાળ કરવાની છે જ્ઞાન લેવા માટે, બાકી શરીરની અંદર મોહ ન હોવો જોઈએ। तकलीफ होती है तो चत्ती भी लगानी पड़ती है। कोई परेशानी आवे, कोई बीमारी आवे तो ऑपरेशन भी करવું पड़े। तुम जानते हो यह पुराना सड़ा हुआ शरीर है।
કેવું શરીર છે? જૂનું જળજળીભૂત થયેલું, એટલે બીમારીઓ તો હોવાની સ્વાભાવિક છે. તો બાબા કહે છે બીમારીઓમાં ઓપરેશન બી કરવા પડે તો ભલે કરાવો, પરંતુ શરીરને સ્વસ્થ રાખી આ શરીર દ્વારા જ્ઞાન મેળવો, પણ શરીરની અંદર મોહ નહીં રાખો. इनको कुछ न कुछ होता रहता है, दुख आत्मा को होता है, जानते हो अब तो यह शरीर छोड़ना है, योग बल से इनको थमाना है, बाप को याद करते रहना है, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना है, बस. શું કરવાનું છે? પોતાને આત્મા સમજી બાબાને યાદ કરો, બસ. और कोई लौकिक संबंध भी याद नहीं आने चाहिए. मैं देह नहीं आत्मा हूँ. शरीरने भी भूलो, शरीરના સંબંધને भी भूलो અને પોતાને આત્મા સમજો. बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को वर्षा देने आया हूँ. आत्मा पवित्र होंगी तब फिर शरीर भी अच्छा मिलेगा. तुम जानते हो अभी हमारी आत्मा पावन बनती है. हम पावन थे तो इन लक्ष्मी नारायण जैसे थे. पावन હતા ત્યારે કેવા હતા? લક્ષ્મી નારાયણ જેવા. इन लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए हैं. सारी सूर्यवंशी डिनाइस्टी ने 84 जन्म लिए हैं. चंद्रवंशी के लिए 84 जन्म नहीं कहेंगे. 84 जन्म कोने લીધા છે? જે સૂર્યવંશી ડિનાસ્ટીના છે, જે લક્ષ્મીનારાયણના વંશજ છે, કે જે સતયુગ આદિથી આવ્યા છે, એ પૂરા 84 જન્મ લે છે. બાકી ચંદ્રવંશીના 84 જન્મો કહેવાતા નથી. हाँ, जो सूर्यवंशी में पहले दास दासी बनते होंगे वह फिर त्रेता में कुछ मर्तबा पाते हैं, उनके 84 जन्म कहेंगे. राजा रानी प्रजा जो भी दास दासिया आदि सूर्यवंशी में आते हैं वही 84 जन्म लेते हैं. એવું નહીં કે સતયુગ આદિના ખાલી રાજાઓ 84 જન્મ લે છે, નહીં. સતયુગમાં જે રાજા છે, પરંતુ એની સાથે દાસ દાસી પ્રજા નોકર ચાકર જે સતયુગ આદિથી આવ્યા છે, એ હરેક 84 જન્મ લે છે. ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है. हम 84 जन्म कैसे लेते हैं? विचार सागर मंथन करना चाहिए. जितना हो सके बाप को और वर्षे को याद करते रहो. જેટલું બને એટલું બાબાને અને સતયુગી દુનિયાના વર્ષાને યાદ કરતા રહો. चलते फिरते समझो कि हम बाबा के बच्चे हैं. कोई भी मिले तो उनको बाबा का परिचय देना है. શું સમજવાનું છે? આપણે કોણ છીએ? પરમાત્માના બાળકો છે. હરેકને બાબાનો પરિચય આપો. इन चित्रों में सारी नॉलेज है. सब बताना है. बाबा आया हुआ है ब्रह्मा तन में. हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं ना. આપણે કોણ છીએ? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ. हम बीके को स्वर्ग का मालिक बनाने बाबा आया हुआ है. बाबा કેમ આવે છે? આપણને સતયુગી दुनियाना मालिक बनावा માટે. सब आत्माओं का बाप एक है. अपने अपने कार्ड भी दिखा सकते हो. कहा ऑफिस आदि में भी कार्ड दो, परंतु समझ नहीं सकेंगे कि बीके कौन है. अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं. गवर्नमेंट को भी समझाया जाता है. हमारी यह फैमिली है. दादा और बाबा. બાબાએ કહ્યું કે આપણે બ્રહ્મા કુમાર કુમારીઓ છે. આપણે એક પરિવાર છે. અહીંયા દાદા બી છે, બાબા બી છે. તું ગવર્મેન્ટને બી સમજાવ્યું કે આ એક સંપૂર્ણ ઈશ્વરીય પરિવાર છે. दादा द्वारा हम वर्षा ले रहे हैं.
यह याद रखने से खुशी रहनी चाहिए। मिल्कियत तो दादी की है, पौत्रों का हक है। पूरा हिस्सा बांट कर लेते हैं। मिलकत કોની છે? દાદાની। દાદા કોણ? શિવ બાબા। અને આપણે બધા એમના પૌત્રી પૌત્રીયા છે, તો વારસો વેચીને લેવાનો છે। तुम भी जानते हो, शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हम वर्षा लेते हैं। यह याद रखना चाहिए। શું યાદ રાખવાનું છે? શિવ બાબા પાસેથી બ્રહ્મા द्वारा આપણે वारसो ले रहा है, तो ये याद रखना है। पढ़ना है और फिर पढ़ाना भी है। यह बाप का फर्ज है बच्चों की पालना करना। बाबानो फर्ज છે બાળકોની પાલના કરવી। તો બાબા જ્ઞાન દ્વારા આપણી પાલના કરી રહ્યા છે, પરંતુ આપણી ફરજ કઈ છે? જ્ઞાન લેવાનું અને બીજાને આપતા રહેવાનું। जब तक कुमार कुमारी बालिग न बने, बाप को उनकी संभाल करनी पड़ती है। दुनियानी अंदर भी જ્યાં સુધી બાળકો 18 વર્ષના ના થાય ત્યાં સુધી એ બાળકોની જવાબદારી મા બાપની હોય છે। और એ સમય બાળકોનું શું કામ હોય? बच्चों का काम है पढ़ना। पढ़ते हैं अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए। तुम जानते हो, बाबा हमको पढ़ा रहे हैं 21 जन्म के लिए। फिर हम अपने पैरों पर खड़े रहेंगे। દુનિયાની અંદર બી 18 વર્ષના થાય ત્યાં સુધી બાળકોનું એક જ કામ હોય, ભણવાનું, અને એમની સારી જવાબદારી કોની હોય? મા બાપની। તો બાબા કે છે અહીંયા બી બાબા જ્ઞાન આપે છે, જ્ઞાન શિક્ષક બનીને જ્ઞાન આપે છે। બાબા કે છે જ્ઞાન લો અને પછી શું કરો? પોતાના पैर पर ઊભા થઈ જાઓ અને બીજાને બી જ્ઞાન આપો। तुम जानते हो, बाबा हमको पढ़ा रहे हैं 21 जन्म के लिए। फिर अपने पैरों पर खड़े रहेंगे। जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। तुम खुद कहते हो, हम यहाँ आते हैं श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने। આપણે બાબા પાસે કેમ આવ્યા છે? લક્ષ્મી નારાયણ બનવા। यह सत्यनारायण की कथा है ना। कोई को पता नहीं है कि यह लक्ष्मी नारायण 84 जन्म कैसे लेते हैं। राधे के भगत होंगे तो कहेंगे राधे हाजिर हाजुर, जिधर देखो राधे ही राधे। कृष्ण के भगत होंगे तो कहेंगे जिधर देखे वहाँ कृष्ण ही कृष्ण। शिव के भगत होंगे तो कहेंगे जहाँ जिधर देखे वहाँ शिव ही शिव। यह गुड़ गुड़दानी कर दी है। ईश्वर राधे कृष्ण सब सर्वव्यापी है। બધાએ પોતપોતાના માન્યતા અનુસાર અલગ અલગ ભગવાન બનાવ્યા અને બધાને સર્વવ્યાપી કરી દીધા। તો શું કૃષ્ણએ સર્વવ્યાપી, શિવ બાબાએ સર્વવ્યાપી, રાધેએ સર્વવ્યાપી, બધા સર્વવ્યાપી બની ગયા? यह सब ईश्वर के रूप है। भगवान ने यह रूप धारण किए हैं और कहते हैं जिधर देखो उधर तू है नजर आए। बिल्कुल ही बेसमझ बन पड़े हैं। यह है विकारी पतित दुनिया। सतयुग है निर्विकारी पावन दुनिया। वाइसलेस वर्ल्ड का अर्थ ही है स्वर्ग। निर्विकारी दुनिया नो अर्थ શું છે? स्वर्ग। कहते हैं वहाँ बच्चे तो है ना, वह कैसे पैदा होंगे? ઘણા લોકોના મનમાં પ્રશ્ન થતા હોય ને ઘણા પૂછતા બી હોય છે કે અગર સતયુગ નિર્વિકારી દુનિયા છે તો ત્યાં બાળકો તો હોય છે, તો બાળકો કઈ રીતે पैदा થાય? બસ સવાલ ही यह पूछेंगे। कहेंगे बच्चे नहीं पैदा होंगे तो सृष्टि भी कैसे चलेंगी? दुनियाना लोको छे ने हर साल आदमशुमारी का हिसाब निकालते हैं। कितनी जास्ती मनुष्य है? हर एक वर्षे जनसंख्याની ગણતરી થાય છે, વસ્તી ગણતરી। તો હર વર્ષે વસ્તી ગણતરી વધતી હોય છે, ઘટતી નથી। यह नहीं बताते कि इतने मरे, तो बच्चों को पहले तो अपना कल्याण करना है।
मैं आत्मा हूँ, पहले यह निश्चय करो। कयो निश्चय करवानो? આપણે कौन से पहला? आत्मा। बाबा को याद करना है। अंत काल जो नारायण सिमरे, अब नारायण सिमरे यह अक्षर जूठे लिखे हैं। कैसे कहना है? अंत काल जो शिव बाबा सिमरे, उसी चिंता में जो मरे, सो स्वर्ग का नारायण बने। हाँ, बाबाए શું કહ્યું? पहला શું कहता था? अंत काल में जो नारायण सिमरे वल वल योनि को पाए। अब बाबा कहते ऐसे नहीं करना, ऐसे कहो अंत काल जो शिव बाबा को सिमरे, उसी चिंता में जो मरे, सो स्वर्ग का नारायण बने। तो अंतकाल नारायण क्यों कहते हैं? समझते हैं कृष्ण ने ज्ञान दिया था, तो भला कृष्ण को सिमरे ना, कृष्ण को याद करते हैं। नारायण का तो किसी को पता नहीं। कृष्ण की जयंती मनाते हैं, भला राधे की जयंती कहाँ? कृष्ण का जन्म मनाते हैं, नारायण का कहाँ? वर्ल्ड के किंग क्वीन लक्ष्मी नारायण का किसी को पता ही नहीं है। दुनियाना महाराजा महारानी जे लक्ष्मी नारायण से एमने कोई जानતું નથી। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली होंगे ना? कहा गए? कहते हैं ब्राह्मण देवी देवता नमः। ब्रह्मा के मुख वंशावली थी। बच्चे जानते हैं ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। सो ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ब्राह्मण धर्मની સ્થાપના કરે છે। ब्राह्मण धर्म ब्रह्माने नहीं रचा, परंतु शिव बाबा ने रचा। ब्राह्मण धर्म की स्थापना कोने करी? रचना कोने करी? तो शिव बाबा ने। यह तो अभी ब्रह्मा बना है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। इस पुराने शरीर में रहते पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों के लिए कमाई करनी है, इसीलिए इसकी संभाल करनी है। बाकी इसमें रग नहीं रखनी है। बाबा કહે છે આ પુરાણું જૂનું જળજડીભૂત શરીર છે, આ શરીરમાં રહીને 21 જન્મની કમાણી કરવાની છે, માટે આ શરીરની સંભાળ રાખો, परंतु એની અંદર મોહ ના હોવો જોઈએ। ऐसा अभ्यास करना है जो अंत काल में एक शिव बाबा की याद रहे, दूसरे किसी भी चिंतन में नहीं जाना है। बाबा કહે છે अंत समय में एक शिव बाबा ने याद रहे एनो अभ्यास करो, बाकी कोई चिंतन न होવું જોઈએ। अपना कल्याण करना है। वरदान। साकार रूप में बाप दादा को सन्मुख अनुभव करने वाले कंबाइंड स्वरूपधारी भव। साकार रूप में बाप दादा को सन्मुख में अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। तो जैसे शिव शक्ति कंबाइंड है, शिव और शक्ति, ऐसे पांडव पति और पांडव कंबाइंड है। जो ऐसे कंबाइंड रूप में रहते हैं उनके आगे बाप दादा साकार में सर्व संबंधों से सामने होते हैं। अभी दिन प्रतिदिन और भी अनुभव करेंगे कि जैसे बाप दादा सामने आए, हाथ पकड़ा, बुद्धि से नहीं आंखों से देखेंगे
अनुभव होगा। बाबा कहे छे एवो समय भी आवशे आगळ जता, अनुभव थशे के जाणे साकारमा बाप दादा आपणी सामे छे, एमणे आपणो हाथ पकड्यो छे, एवो आपणे अनुभव करीशुं। लेकिन कब? जब यह पाठ पक्का हो, एक बाप दूसरा न कोई। तो जैसे परछाई घूमती है, ऐसे बाप दादा आंखों से हट नहीं सकते। यह सदा सन्मुख की अनुभूति होगी। बाबा कहे छे जेवी रीते शिव शक्ति कम्बाइंड स्वरूप। तो बाबा कहे छे आपणे अगर स्त्री छे तो एम समझो कि हूँ शिव शक्ति कम्बाइंड स्वरूप छूँ। પાંડવ છું તો એમ સમજો કે હું પાંડવ પતિમાંના પાંડવ અને પતિ શિવ બાબા અમે બંને કમ્બાઇન્ડ છીએ। તો જ્યારે કમ્બાઇન્ડ સ્વરૂપ ધારી રહેશું ત્યારે બ્રહ્મા બાપ અને શિવ બાબા બાપ દાદા બંને જાણે સાકારમાં આપણી સામે સર્વ સંબંધોની અનુભૂતિ કરાવી રહ્યા હોય એવો અનુભવ થશે। તો બાબા કહે છે એવો અનુભવ કરવા માટે એક પાઠ પાક્કો કરો, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। स्लोगन, माया जीत प्रकृति जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही स्व कल्याणी व विश्व कल्याणी है। केवा बनवानुं छे? माया जीत अने प्रकृति जीत। अने माया जीत प्रकृति जीत बनीशुं तो माया जीत बनीशुं तो स्वकल्याणी बनी जईशुं, प्रकृति जीत बनीशुं तो विश्व कल्याणकारी बनी जईशुं। तो शुभ करो, माया जीत अने प्रकृति जीत बनो। अच्छा, ओम शांति।